When Lord Krishna was leaving the city of Hastinapur, Arjuna personally held an umbrella over the Lord, and Uddhava and Satyaki fanned the Lord with decorated fans. In this way, Emperor Yudhishthira and his followers worshipped Krishna as the greatest of the noble kings and as supreme person of Godhead. Similarly, at the Rasuya sacrifice, all of the great souls of the universe elected Krishna as the king of all kings, the greatest personality, deserving of first worship. Such reverential worship of the Lord is characteristics of Dwapar Yuga, as described in this verse, Maharajopalakshanam. With each successive yuga, namely Satya, Treta, Dwapar, and Kali, the conditions of human society deteriorate more and more. As mentioned in this verse, the only favorable qualification of people who live during Dwapar Yuga is that they are Jigyasava, strongly desirous of knowing the absolute truth. Otherwise, there is no good qualifications mentioned. The people of Satyuga were described as Shanta, Nirvaira, Suruda, and Sama, or peaceful, free from envy, the well-wisher of every living entity, and fixed on the spiritual platform beyond the modes of material nature. Similar people of Tetagar were described as Dharmishta and Brahmavadina, or thoroughly religious and expert followers of the Vedic injunctions. In the present verse, the people of Dwapar Yuga are said to be simply Jigyasava, desiring to object to the weakness of mortal beings. If the human society of even Dwapar Yuga was clearly inferior to that of Satya and Treta, we can hardly imagine the truly disastrous condition of human society in Kali Yuga. Therefore, as will be mentioned in the following verses, human beings who have taken their birth in the present age of Kali should attach themselves rigidly to the moment of Lord Chaitanya Mahaprabhu to free themselves from foolishness. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Snapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamsha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyat Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurav Tishe Nama He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Runda Vaneshwari Vrishamanu Sute Devi Pranamami Haripriye Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balbhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Nama Vancha Kalpantarubhyasya Kripa Sindhu Bevacha Padidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktorinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna या हम श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद से चर्चा कर रहे हैं।
11वें स्कंद में महाराज निमि और नवयुग का वार्तालाप चल रहा है, जो कि त्रेता युग में हुआ है। तो हम देखते हैं ये श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमको करोड़ों करोड़ों साल पुराना का भी इतिहास समझने को प्राप्त हो रहा है। और ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने ये जो श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसके तात्पर्य दिए, ताकि कलयुग के जो बद्ध जीव है वो भी ये भागवतम का जो संदेश है समझ पाए। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी 1935 में वृंदावन परिक्रमा के लिए गए थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से वो राधा कुंड पे मिले और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद को बोले कि मैंने ये बहुत बड़ा मंदिर बनाया, लेकिन तब से मेरा सर दर्द शुरू हो गया, क्योंकि भक्त लोग में आपस में झगड़ा शुरू हो गया, किसको कौन सा रूम मिलेगा। तो उससे मैं सोचता हूँ कि ये जो मंदिर है उसका मार्बल निकाल के बेचूं और किताब प्रिंट करो, क्योंकि किताब प्रिंट करेंगे तो लोग किताब पढ़ेंगे, उससे वो भक्ति को लेंगे। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद को बोले, आपको अगर कभी पैसा मिला तो आप क्या करना, यू प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये वचन बहुत सीरियसली लिया। और उसके पहले 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला था कि यू आर यंग मैन, एजुकेटेड मैन, वाई डोंट यू टेक दिस मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड स्प्रेड इट इन इंग्लिश लैंग्वेज इन वेस्टर्न वर्ल्ड। आप तो यंग हो, नवयुवक हो, क्यों ना आप ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है विदेश में जाके अंग्रेजी में प्रचार करें। तो ये जो दो आदेश श्रील प्रभुपाद जी को मिले, 1922 में एक आदेश और 1935 में एक आदेश कि श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी का प्रचार पूरे विश्व में करें, और दूसरा कि ग्रंथों का प्रिंटिंग करें और प्रसार करें। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सीरियसली लिया। हम देखते हैं पूरे देश विदेश में प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद उनके गुरु भाइयों के साथ बहुत कोऑपरेशन करने का और बहुत एक साथ मिलजुल के प्रचार का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको कुछ एनकरेजमेंट नहीं मिला और वो वर्कआउट नहीं हुआ। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने अपना खुद का एक नया संस्था स्थापन करने का प्रयास किया, क्योंकि वो सोचते थे कि पूरे विश्व में प्रचार करना है तो संस्था की ज़रूरत है। विदाउट इंस्टीट्यूशन टू प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड में बी डिफ़िकल्ट। तो श्रील प्रभुपाद ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज करके एक संस्था शुरू किया, लेकिन कुछ कारणवश वो चल नहीं पाया, वो क्लोज डाउन करना पड़ा। लेकिन पूरा ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए और संस्था और क्या करना चाहिए, उसका पर्पस क्या है, उसका सब कुछ प्रभुपाद ने लिख के रखा। और फिर प्रभुपाद जी किताब पहले 1944 में बैक टू गॉडेड मैगजीन लिखने लगे। वो गृहस्थ थे, बिजनेसमैन थे, तो पैसा बचा के वो प्रिंट करते थे। लेकिन बाद में हम देखते कैसे उनका बिजनेस फेल हो गया, बाद में उनका फैमिली लाइफ भी हरी बोल हो गया थोड़ा, और फिर वो उन्होंने वानप्रस्थ लिया, और वानप्रस्थ के जीवन में भी वो प्रिंटिंग करने के लिए, बैक टू गॉडेड मैगजीन प्रिंट करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। उस समय एक पोस्ट मास्टर उनको बोले कि स्वामी जी आप तो बैक टू गॉडेड मैगजीन प्रिंट करते हैं, लेकिन ये तो मैगजीन है, लोग पढ़ के फेंक देते हैं, लेकिन आप अगर किताब प्रिंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, किताब का सेल्फ लाइफ ज़्यादा है। तो प्रभुपाद जब वो पोस्ट मास्टर से ये सुने
तो तुरंत उनको लगा कि ये गुरु महाराज मुझे बोल रहे हैं कि किताबें लिखना चाहिए। बाद में एक आर्मी का कैप्टन भी उनको बोला, जो उनका बैक टू गॉड पढ़ता था, बोला कि स्वामी जी आप किताब लिखें तो बहुत अच्छा है। तो हम देखते हैं बाद में श्रील प्रभुपाद जी पहला किताब लिखते हैं, ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। सब लोग अदर प्लैनेट जाने का प्रयास कर रहे थे, मून जाने का प्रयास कर रहे थे, अमेरिका, रशिया, सब स्पेस ट्रैवल में आगे बढ़ने का प्रयास करते। तो प्रभुपाद जी लिखते वैदिक संस्कृति में कैसे दूसरे ग्रह में जाने का ये है। और एक साइंटिस्ट में एंटी मैटर के बारे में कुछ लिखा था, तो प्रभुपाद ने वो लेके बोला असली एंटी मैटर क्या है बता के उन्होंने वो उसमें एक्सप्लेन किया था। तो किताब वॉज वेल रिसीव्ड। उसके बाद प्रभुपाद जी सोचे कि अगर असली में दुनिया को बेनिफिट करना है तो और किताबें लिखना है, तो उन्होंने सोचा श्रीमद् भागवतम बेस्ट किताब है। बिकॉज श्रीमद् भागवतम क्या है, कृष्ण का अवतार है। इस कलयुग में हम देखते हैं कि सारे ऋषिगण पूछते हैं सूत गोस्वामी को कि कृष्ण तो चले गए द्वापर युग के एंड में, तो अभी धर्म ने कहा शेल्टर लिया है, शरण लिया है। तो सूत गोस्वामी बोलते कि कृष्ण चले गए लेकिन कृष्ण वापस आए श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये साधारण किताब नहीं, वो साक्षात भगवान है। सो ये कलयुग में ये दो अवतार बहुत स्पेशल अवतार है। एक है श्रीमद् भागवतम और दूसरा है नाम, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान कृष्ण नाम के रूप में आते हैं और भागवत के रूप में आते हैं। तो हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी भागवतम का अनुवाद करने लगे और उन्होंने 60 वॉल्यूम में भागवत प्रिंट करने का संकल्प किया। तब उनका उम्र 65 इयर्स था और 60 वॉल्यूम में प्रिंट करना, और उनके पास न पैसा था ना कुछ असिस्टेंट थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद रोज़ खुद रात में उठते थे, किताब लिखते थे। उनके पास पेपर के लिए भी पैसा नहीं था, प्रिंटिंग करना दूर, और बट बहुत मेहनत करके उन्होंने कैसे तो स्पॉन्सरशिप उन्होंने जुगाड़ लिया। फिर फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट पार्ट उन्होंने प्रिंट किया। उसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट प्रिंट किया, देन थर्ड पार्ट प्रिंट किया। थर्ड पार्ट प्रिंट करने के बाद उनको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी मैं ये भागवतम को लेके विदेश जा सकता हूँ, और मेरे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने जो आदेश दिया है उसको मैं पूर्ण करने का प्रयास कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद इधर 8th कैंटो की शुरुआत में लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ऑफर माई हम्बल रिस्पेक्टफुल ओबेसन टू द लोटस फीट ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी Prabhupada. Sometimes in the year 1935 when his divine grace was staying at Radhakund, I went to see him from Bombay. At that time he gave me many important instructions in regards to constructing temples and publishing books. He personally told me that publishing book is more important than constructing temples. Of course, those same instructions remained within my mind for many years. In 1944, I began publishing my Back to Godhead, and when I retired from family life in 1958, I began publishing Srimad Bhagavatam in Delhi. When 3 parts of Srimad Bhagavatam had been published in India, I then started for United States of America on the 13th of August 1965. तो इस साल 60 years complete हो गए. This is 60th anniversary of Srila Prabhupada's जलदूत यात्रा, 13 August 1965, 13 August 2025. I am continuously trying to publish books as suggested by my spiritual master. Now in this year 1976, I have completed 7th canto of Srimad Bhagavatam, and a summary of 10th canto has already been published as Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Still, the 8th canto, 9th canto, 10th canto, 11th canto and 12th canto are yet to be published. On this occasion, therefore, I am praying to my spiritual master to give me strength to finish this work. I am neither a great scholar nor a great devotee. I am simply a humble servant of my spiritual master, and to the best of my ability, I am trying to please him by publishing these books with the cooperation of my disciples in America.
Fortunately, scholars all the world are appreciating this publication. Let us cooperatively publish more and more volumes of Srimad Bhagavatam just to please His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. तो प्रभुपद का बहुत उत्साह था ये भागवतम पब्लिश करने का, और प्रभुपद की कृपा से हमको ये भागवतम मिला है। और भागवतम मिलने का हमको पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, करोड़ों करोड़ों साल का वर्ल्ड हिस्ट्री हमको सुनने को समझने को मिल रहा है। और अभी जो कथा चल रहा है ये सत्युग का कथा है, महाराज निमि और नवेंद्र के बीच में चर्चा चल रहा है। तो हम देखते हैं अभी ये चर्चा में वर्ष नंबर नवेंद्र ने, महाराज निमि ने 9 प्रश्न पूछे और 9 योगेंद्र ने वो 9 प्रश्न के उत्तर दिए। एक एक योगेंद्र ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। अभी जो लास्ट प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज निमि, 11 कैंटो 5th चैप्टर 19th वर्ष में महाराज निमि पूछ रहे, श्री राजवाच कस्मिन् काले स भगवान किं वर्ण कीदृश निभि नाम नाम वा केन विधिना पूज्यते तत् इहोच्यतम्। King Nimi inquired, in what colors and forms that the Supreme Person of Godhead appear in each of different ages, and with what names and by what types of regular principle is the Lord worshipped in human society? तो कौन से कलर में, कौन से रूप में भगवान अलग अलग युग में आते हैं, और उनका क्या क्या नाम होता है, और उनको कैसे कैसे पूजा किया जाता है, इसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। ऐसे निमि महाराज बताते। तो फिर करभजन ऋषि, करभजन मुनि उसका उत्तर देते। इन ईच ऑफ द 4 युगास और एजेस, कृत, त्रेता, द्वापर एंड कली, Lord Krishna appears with various complexions, names and forms and is thus worshipped by various persons. तो करभजन मुनि फिर उनको बताने लगते कैसे अलग अलग युग में भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के अनगिनत अवतार, अनलिमिटेड। जैसे कोई समुंदर के लहरें, समुंदर में कितने लहरें हैं? हाउ मेनी वेव्स ओशन हैज? अनलिमिटेड। हम काउंट नहीं कर पाएंगे कितने लहरें समुंदर में है। कंटिन्यूसली लहरें आते ही रहते हैं। वैसे भगवान के अवतार कंटिन्यूसली आते रहते हैं और उनका गिनती करना असंभव है। सो भगवान के अवतार कितने हैं? असंख्य, अनलिमिटेड है। चैतन्य चेतावनी में चैतन्य महाप्रभु बता दे कि लेकिन 6 मेन प्रकार के अवतार होते हैं। पहला अवतार है भगवान का पुरुष अवतार। पुरुष अवतार यानी ये जब भौतिक जगत का विस्तार करना होता है तो भगवान क्या करते हैं? संकर्षण जी जो है विस्तार करते कारणदक्ष विष्णु के रूप में। कारणदक्ष विष्णु बहुत बड़े व्यक्तित्व है। उनके पोर्स ऑफ द बॉडी से ब्रह्मांड निकलते हैं, वह है कारणदक्ष विष्णु। फिर कारणदक्ष विष्णु विस्तार करते हैं गर्भदक्ष विष्णु। हर ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के अवतार होते हैं। जो आधा ब्रह्मांड पानी से भर देते हैं उसके ऊपर वो खुद लेटते हैं और उनके नाभि से कमल निकलता है। हर कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है। तो वो जो है ये है गर्भदक्ष विष्णु। और फिर तीसरे विष्णु है शिरोदक्ष विष्णु। हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में और हर अनुरेण्यु के में परमात्मा के रूप में स्थित होते, वो है शिरोदक्ष विष्णु। सो ये जो 3 पुरुष अवतार है, कर्णदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु और शिरोदक्ष, पूरे भौतिक जगत को चलाते हैं। ये पूरा भौतिक जगत ये 3 विष्णु के कारण चलता है। कौन से? कर्णदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु एंड शिरोदक्ष विष्णु। तो ये 3 विष्णु को बोला है पुरुष अवतार।
तो ये एक अवतार है। दूसरे है गुण अवतार। ये जब भौतिक जगत होता है तो ये भौतिक जगत में सारे जीवात्मा 3 गुणों से बंधे रहते हैं, तमगुण, रजगुण एंड सत्वगुण। और ये तमगुण, रजगुण, सत्वगुण के इंचार्ज जो है, तमोगुण के इंचार्ज कौन है? शिव जी। रजगुण के इंचार्ज कौन है? ब्रह्मा जी। और सत्वगुण के इंचार्ज कौन है? विष्णु। तो ये 3 शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु, ये 3 क्या है? गुणावतार है। तो ये 3 पुरुष अवतार पूरा क्रिएशन करते हैं और फिर कंट्रोल सब लिविंग एंटिटीज को ये 3 गुण करते हैं। और 3 गुण की इंचार्ज है ये शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। फिर हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो मनवंतर में क्या होता है? एक मनवंतर में एक मनु राज्य करते। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और 1000 दिव्य युग होते हैं। तो ऑलमोस्ट 71 दिव्य जो है एक मनवंतर का, एक मनु का पीरियड है। तो हर मनु के समय एक भगवान आते हैं, उसको बोलते हैं मनवंतर अवतार। वो भगवान के आदेश के अनुसार मनु अपना राज्य करते हैं और फिर इंद्र और सब देवता लोग ये करते हैं। तो हर मनवंतर में एक अवतार आते हैं जिनके मार्गदर्शन के हिसाब से सब चलता है। उसको बोला है मनवंतर अवतार। सो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर अवतार आते हैं और हर मनवंतर में 71 युग आते हैं, दिव्य युग आते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। और हर सत्ययुग में, हर त्रेता युग में, हर द्वापर युग में, हर कलयुग में भी भगवान आते हैं। जय श्री श्रीनिताय गौरांग की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो उसको बोला है युग अवतार। तो हर सत्ययुग में, अलग अलग सत्ययुग में, अभी ब्रह्मा के एक दिन में 1000 सत्ययुग है। तो 1000 युग अवतार है सत्ययुग के, 1000 त्रेतायुग के अवतार, 1000 द्वापर युग, 1000 त्रेतायुग, 1000 कलयुग के। तो हर युग में आते हैं। और उसके अलावा लीला अवतार है, जो भगवान आते हैं, अलग अलग लीला करने आते हैं, अलग अलग भक्तों के साथ आदान प्रदान करने आते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आए हैं नरसिम्हा देव। फिर हम देखते लॉर्ड रामचंद्र, नरसिम्हा देव, ऐसे अलग अलग अवतार है, वो लीला अवतार से। और उसके अलावा भी स्पेशल अवतार है, जैसे शक्तावेश अवतार। स्पेशल अवतार्स आर एम्पावर्ड टू डू सम स्पेशल एक्टिविटीज। समटाइम्स जीवात्मा को भी स्पेशल शक्ति दिया जाता है, भगवान खुद अपना शक्ति देते हैं कुछ स्पेशल चीज़ें करने के लिए। जैसे नारद मुनि उनको भक्ति शक्ति दिया है, उन सबको भक्ति बांटने के लिए। या 4 कुमाराज है, उनको ज्ञान बांटने के लिए। तो अलग अलग पृथु महाराज, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का शक्ति दिया है ना। तो अलग अलग ऐसे शक्तावेश अवतार है। तो कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह अनलिमिटेड अवतार है। पुरुष अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार। प्रैक्टिकली अवतार्स आते ही रहते हैं। तो इस सभी चैप्टर में हम देख रहे हैं कि करभजन मुनि बता रहे कि हर 4 युग में कृत, त्रेता, द्वापर, कली भगवान अलग अलग रंगों में आते हैं, अलग अलग उनके नाम रहते हैं, अलग अलग रूप रहते हैं और उनको अलग अलग तरह से सेवा पूजा किया जाता है। वो बता रहे सत्ययुग, इन सत्ययुग लॉर्ड इज वाइट एंड 4 आर्म। सत्ययुग का कलर क्या है भगवान का? वाइट, शुक्ल।
हैज़ मैटेड लॉक्स, उनका जो बाल है मैटेड, जटाए है, एंड वेयर्स अ गारमेंट ऑफ ट्री बार्क, भगवान पेड़ के छाल के कपड़े पहन रहे हैं। ही कैरीज अ ब्लैक डियर स्किन, अ सेक्रेड थ्रेड, प्रेयर बीड एंड द रॉड एंड वाटर पॉट ऑफ अ ब्रह्मचारी। तो इस तरह सतयुग में भगवान इस रूप में आते हैं। पीपल इन सतयुगा, इधर सतयुग के लोगों का गुण बताए। मनुष्यास्त तदा शांता, शांता निर्वैरा, सतयुग के लोग शांत रहते, एकदम डिस्टर्ब नहीं रहते। निर्वैरा, शांत क्यों नहीं रहते? क्योंकि वैर नहीं है उनमें। जैसे वैर आता है, एनवी आता है, तो डिस्टर्बेंस शुरू होता है। लेकिन वैर नहीं है तो आप शांत रह सकते हैं। तो सतयुग के लोग शांत रहते, निर्वैर रहते, सुहृद रहते। सुहृद मीन्स एक दूसरे के प्रति उनका सद्भावना रहता है। सुहृद, क्षमा, तो वो सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल उनको रहता है एकदम। यजंती तपसा देवम शमेन च दमेन च, और तो सतयुग के लोग में ऐसे अच्छे गुण रहते हैं और वो भगवान को पूजा करते हैं ध्यान के माध्यम से, क्योंकि उनके मन और इंद्रियां कंट्रोल में रहते हैं। ध्यान करना है तो मन और इंद्रियों को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगर मन और इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है तो ध्यान करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, इन सत्युगा लॉर्ड इज ग्लोरिफाइड बाय द नेम्स हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त एंड परमात्मा। तो सत्युग में भगवान आते हैं वाइट कलर में, ब्रह्मचारी रूप में, और उनके अलग अलग नाम है। हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त एंड परमात्मा। परपोर्ट में लिखा है, द सेज कर्बज मुनि इज रिप्लाइंग Nimi Maharaj's question about the varieties of Lord's incarnation. In Satyuga, Lord's color is white and he wears tree bark and black deer skin as an ideal meditative brahmachari. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has explained the Lord's various names in Satyuga as follows. Those who are self-realized know the supreme reality of the personal Godhead as Paramatma. Those souls who are situated in the religious system of Varnashrama glorified him as Hamsa, who is transcendental to all Varnas and Ashramas. Persons absorbed in gross matter consider him as Suparna, the beautifully winged basis of conception of cause and effect, who flies within subtle sky of the soul, as described in Chandogya Upanishad. Person accustomed to wandering within the universe of subtle and gross matter created by Lord's illusory potency chant his name Vaikunta. Persons deprived of the power of transcendental meditation, dharana, who are thus the subject to falling from the path of religion, glorify him as Dharma, religion personified. Those who are forced to submit to illusion energy of material nature and whose minds are uncontrolled and disturbed, glorify him as the most perfectly self-controlled Yogeshwar. Person tainted by mixture of modes of passion and ignorance, call him as Amala, or uncontaminated. Person devoid of potency, call him as Ishvara. And those who consider themselves to be under shelter of chant his glories by name Uttama Purusha. Those who know that this material manifestation is only temporary call him Avyakta. In this way, in Satyuga, Lord Vasudev appears in various four-armed transcendent forms and the Jiva souls worship him, each by their own particular process of devotional service. Therefore, the Supreme Lord has many different names. तो ये सत्ययुग में शुक्ल वर्ण वाइट कलर में आते हैं। अभी त्रेतायुग के बारे में महाराज कर्बजन मुनि महाराज निमि को बता रहे हैं। इन त्रेतायुगा लॉर्ड अपीयर्स विद रेड कॉम्प्लेक्शन, सत्युग में वाइट, त्रेतायुग में लाल कलर में आते हैं। ही हैज़ 4 आर्म्स, 4 भुजा है, गोल्डन हेयर, रेड कलर गोल्डन हेयर। ऐसा आदमी देखा है आपने कभी? तो भगवान त्रेतायुग में लाल कलर में है, गोल्डन उनके बाल है। वेयर्स अ ट्रिपल बेल्ट representing initiation into each of the 3 Vedas, embodying the knowledge of worship by sacrificial performance, which is contained in Rig, Sam and Yajurveda.
His symbols are ladle and spoon. Ladle and spoon. यज्ञ का जो and other implements of sacrifice. Then in Treta Yuga, those members of human society who are fixed in religiosity and are sincerely interested in achieving absolute truth worship Lord Hari, who contains within himself all demigods. The Lord is worshipped by the ritual of sacrifice taught in the three Vedas. सत्ययुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ. इस तरह भगवान का पूजा होता है. In Treta Yuga, Lord is glorified by the names Vishnu, Yagya, Prishnigarbha, Sarvadeva, Urukrama, Vrisha Kapi, Jayanta and Urugaya. तो अलग अलग नाम से त्रेता युग में भगवान को बुलाया जाता है. Prishnigarbha refers to Krishna's incarnation, son of Prishni Devi and Prajapati Sutapa. Vrishakapi indicates that if the living entity simply remember the Lord, he is inclined to shower all benediction upon them, thus satisfying their desires and removing their miseries. Since Lord is always victorious, he is called as Jayanta. So सत्ययुग में white color, त्रेता युग में लाल कलर और द्वापर युग. In द्वापर युग, Supreme Person of God appears in dark blue complexion, नीला color, wearing yellow garments. Lord's transcendent body is marked in this incarnation with Srivatsa and other distinctive ornaments, and he manifests his personal weapons. लाल, white, लाल और ब्लू, नीला. द्वापर युग में नीले कलर में आते हैं. The Lord's transcendent body in Dwapar Yuga can be compared to the color of a dark blue flower. The Lord exhibits his personal transcendent weapons such as Sudarshan, Chakra, and all of the limbs of his body, especially his hands and the feet, decorated with auspicious marks such as lotus flower and flag. And on his chest, the Lord manifests the Kaustuba jewel and as well as auspicious Shrivasa. भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है और छाती पे है श्रीवत्स. Silver hair, Srivatsa. A whirl of hair curling from left to right on the right side of the Lord's chest. Left right hair कैसा है वो भी दिखाया है Srivatsa. Actually, such auspicious marks as Kaustubh and Srivatsa, as well as the weapons of Lord, are present in all of the Vishnu Tattva incarnations. Shilji Goswami explains that this universal characteristics of the Lord mentioned by the sage Skarbhajana are indications of the Krishna avatar. Because Krishna is source of all incarnation, all of the symptoms of all other incarnations are to be found in his transcendent body. सारे अवतारों के जो चिन्ह कृष्ण के शरीर में, बिकॉज कृष्ण इज अवतारी है, सब अवतारों के स्रोत है. तो आज का श्लोक, तम तत्पुरुषम मर्त्या महाराजोपलक्षणम यजंती वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासव नृपा. कर्जवर्धन बता रहे हैं कि हे महाराज निमि, इन द्वापर युगा men who desire to know the supreme person of Godhead, who is supreme enjoyer, worship him in the mood of honoring a great king, following the prescription of both Vedas and Tantras. द्वापर युग में भगवान को एक राजा के रूप में पूजा जाता है. तो परपट में बताया गया है कि कैसे कृष्ण हस्तिनापुर से निकल रहे तो अर्जुन स्वयं उनको छाता देते हैं और उद्धव और सत्य की फैन करते हैं राजा की तरह. सिमिलरली रासु यज्ञ में कृष्ण को राजाधिराज के रूप में प्रथम उनका पूजा किया गया. तो और इधर कहा गया है कि द्वापर युग के लोगों का क्या क्या गुण है. हम पहले देखा कि सत्युग के लोगों के गुण क्या क्या है. शांत, निर्वैर, सुहृद एंड क्षमा. शांत में यानी शांत रहते, पीसफुल रहते. निर्वैर, फ्री फ्रॉम एनवी रहते हैं. सुहृद, आपस में सौराध्य रहता है, दे आर वेल विशर ऑफ एवरीबडी.
एंड क्षमा, उनका मन और इंद्रिय संयम रहता है। त्रेता युग में कहा गया है कि पीपल आर धर्मिष्ठ एंड ब्रह्मवादिना। धर्मिष्ठ यानी थरोल रिलीजियस एंड ब्रह्मवादिना मीन्स एक्सपर्ट इन फॉलोइंग वैदिक इंजंक्शन। एकदम ऑनेस्टली सब फॉलो करते हैं और दे आर एक्सपर्ट ऑल्सो। एंड द्वापर युग में कहा गया है कि पीपल आर जिज्ञासवा। जिज्ञासा, ओनली क्वालिफिकेशन द्वापर युग जिज्ञासा, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग supreme absolute truth. So otherwise they don't have much qualification. So here it is said in Dwapar Yuga the people are said to be simply jigyasava, desiring to know the absolute truth. Otherwise they are described as martya or subject to the weakness of mortal beings. If the human society of even Dwapar Yuga was clearly inferior to that of Satya and Treta, we can hardly imagine truly disastrous condition of human society in Kali Yuga. Therefore, as will be mentioned in the following verses, human beings who have taken their birth in present age of Kali should attach themselves rigidly to the moment of Chaitanya Mahaprabhu to free themselves from all foolishness. तो हम देखते हैं सत्य युग से त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग पतन होते जाता है मनुष्य जीवन का। और कलयुग में सबसे पतित जीव है। लेकिन हम देखते स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आज के लोगों को बताया जाता है कि अरे नाउ यू आर मोस्ट इवॉल्व। क्या सिखाया जाता है? यू आर मोस्ट प्रोग्रेस्ड। बट हम शास्त्र देखेंगे एक्चुअली वी आर नॉट मोस्ट प्रोग्रेस, वी आर मोस्ट डिग्रेडेड। सत्युग में लोग 1,00,000 साल जीते थे, त्रेतायुग में 10,000 साल जीते थे, द्वापर युग में 1,000 साल जीते थे, कलयुग में 100 साल भी जिए तो बहुत बड़ा बात है। तो आजकल मॉडर्न प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अरे देखो हम इतना साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर रहे हैं, आपका जीवन बढ़ा रहा है। पहले लोग 40 साल जीते थे, 50 साल, 70 साल, 80 साल, अभी हम एज बढ़ा रहे ह्यूमन एक्सप्रेस। तो कितना कलयुग में ये लोग झूठा ही बड़ा ये करते हैं ना। कलयुग में सबसे डिग्रेडेड लोग हैं, लेकिन सब लोग सोचते हैं हम सबसे एडवांस लोग हैं। यही डिग्रेडेशन का सबसे प्राइम लक्षण है। डिग्रेडेशन यानी क्या, लोग दे आर सो फॉल्सली पफ्ड अप, कुछ क्वालिफिकेशन नहीं लेकिन सोचते हैं हम सबसे बड़े हैं, सबसे महान है, सबसे बहुत अच्छे हैं। दे आर फॉल्सली पफ्ड अप, उनमें कुछ भी गुण नहीं है लेकिन सोचते हैं सबसे गुणवान हम ही है, पहले ज़माने से भी हम बेटर है। बट इफ वी फाइंड आउट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड रियलिटी चेक करेंगे तो हम सबसे पतित हैं। तो कलयुग इज़ नोन बाय इज फॉल्सिटी, एकदम फॉल्स प्रोपोगंडा करते, पूरा उल्टा सुल्टा बोल के ये करते, भ्रमित कर लेते। और सब लोग कन्विंस हो जाते कि हम सबसे एडवांस है। अरे सबसे पतित लोग सोचते हैं सबसे एडवांस है, एंड सबसे स्थिति भयावह है, सबसे मिजरेबल कंडीशन, लोग सोचते हैं हम सबसे आनंदित है और देखो हमको क्या किसी का ज़रूरत है, क्या हमको भगवान की ज़रूरत है, हम ही भगवान है। हमारे पास इतना पैसा है, धन है, संपत्ति है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, लेकिन एक्चुअली ये तो सबसे पतित है। सो पहले लोगों को एक बार सुनते थे तो याद रहता था, अभी 10 बार भी बताए तो भूल जाता है। अभी कंप्यूटर, मोबाइल ये सब कुछ नहीं रहेगा तो आदमी यूजलेस हो जाता है, याद कुछ नहीं रहता। तो और अभी तो नया नया अल्जाइमर्स डिसीज़ तो बहुत बढ़ रहा है आजकल। लोग अभी तो नाम भी भूल जाता है खुद का। अल्जाइमर्स डिसीज़ में क्या होता है, आदमी सब भूल जाता है। और ये अभी कॉमन डिसीज़ हो रहा है, बूढ़ा पहले कभी कभी किसी को होता था, अभी नॉर्मल हो रहा है, लोग भूल जा रहे हैं सब कुछ। ये कलयुग का लक्षण है। और नेक्स्ट वर्सेस में हम देखते हैं कि करभज मुनि बताते हैं कलयुग सबसे पतित है, लेकिन इसमें ये बहुत एक अच्छा चीज़ है। वो चीज़ है कि इस कलयुग में
कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं संगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञै संकीर्तन प्रायैर् यजन्ति ही सुमेधसा। कलयुग में भगवान आते कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, लेकिन काले कलर में नहीं आते, वो गोल्डन कलर में आते। और अकेले नहीं आते, संग पांगास्त पार्षदम, उनके पार्षदों के साथ आते हैं। और क्या करते? यज्ञ संकीर्तन, और संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन यज्ञ को शुरुआत करते। और यजंती ही सुमेधसा, कलयुग में तो मूर्ख लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक दो कुछ बुद्धिमान लोग हैं, वो संकीर्तन में भाग लेते हैं ना। सुमेधसा, कलयुग में जितने भी, कलयुग तो मूर्खों का सागर है, लेकिन उसमें कोई अगर बुद्धिमान है, सुमेधसा, वो क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ में लेता है। तो ये बहुत स्पेशलिटी है। कलयुग तो बहुत पतित एज है, लेकिन भगवान तो बहुत कृपालु हैं। जितना लोग पतित हो जाता है, उतना भगवान दयालु हो जाता है। तो सबसे पतित कलयुग है, तो सबसे दयालु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और ये सबसे ऊंचा चीज़ कृष्ण प्रेम बांटते हैं। तो हम देखते हैं, और ये है छन्न अवतार। छन्न अवतार यानी हिडन इनकारनेशन। तो 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण है, वो आए मायापुर में, और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का उद्बोधन किया। और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि यही हरिनाम संकीर्तन पूरे विश्व में प्रसारित होगा। पृथ्वी त्याचेत नगरादिगाम, सर्वत्र प्रचार होए वो मोर नाम, और ये पूरा विश्व में प्रचार होगा। और हम देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर ने 1896 में लॉर्ड चैतन्य लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स करके एक किताब लिखा, और पूरे अलग अलग देश विदेश में उसको भेजा। और उसमें प्रेडिक्ट किया कि सून ग्रेट पर्सनैलिटी इज गोइंग टू अपीयर and who will spread this message of Lord Chaitanya in all over the world. तो भक्तिविनोद ठाकुर ने 1896 में प्रेडिक्ट किया कि तुरंत सुन, अभी कोई बहुत महान व्यक्ति आने वाले जो ये हरिनाम संकीर्तन पूरे विश्व में प्रसारित करेंगे। और उसी साल में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ, और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने ये संकीर्तन मूवमेंट पूरे विश्व में प्रसारित किया। तो हम देखते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको श्रीमद् भागवतम मिला है। श्रील प्रभुपाद कृपा से हमको दिस भागवतम क्या है? इट विल गिव लाइट इन द डार्क एज ऑफ कली। ये कलयुग में समझना बहुत मुश्किल है, बिल्डर हो जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, टीवी देखेगा, व्हाट्सएप और ये सब सोशल मीडिया देखे तो पागल हो जाएगा। आपका जो आँख है धुंधला हो जाएगा, कंफ्यूज हो गया बिल्डर। लेकिन भागवतम खोलेंगे तो आपको सही दिशा पता चलेगा, लाइट ऑल बिविल्डरमेंट चला जाएगा। भागवतम पढ़ेंगे तो सही ज्ञान समझ में आएगा और सब बिविल्डरमेंट चला जाएगा। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको ये भागवत पुराण मिला है विद इलाबरेट कमेंट्रीज। सो श्री चैतन्य महाप्रभु है युग अवतार, और श्रील प्रभुपाद है युग आचार्य। इन दिस एज ऑफ कली, द आचार्य हु इज स्प्रेडिंग दिस मिशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य, मिशन ऑफ युग अवतार, मिशन ऑफ संकीर्तन इज श्रील प्रभुपाद। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कैसे कृष्ण को इतना फेमस किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी कृष्ण को जानते हैं, और प्रभुपाद ने ये इस्कॉन संस्था बनाया। अभी लोग कृष्ण को भी जानते हैं और इस्कॉन को भी जानते हैं, लेकिन बहुत बार लोग सोचते हैं ये इस्कॉन जो है ये फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, सोचता है। लेकिन उनको पता नहीं कि ये एक्चुअली इस्कॉन ने एक्चुअली स्टार्ट किया है श्रील प्रभुपाद ने।
श्रील प्रभुपाद ने खुद को फेमस नहीं किया, श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण को फेमस किया। और इसलिए बहुत से लोग प्रभुपाद को जानते नहीं, इस्कॉन को जानते हैं, कृष्ण को जानते, लेकिन ये हमारा दायित्व है कि प्रभुपाद को फेमस करें। ये बहुत दुर्भाग्य का बात है कि इवन कलकत्ता के लोग प्रभुपाद को जानते नहीं। हम जब पहली बार कलकत्ता में आया था, देखा सब जगह बोर्ड लगाए थे। एक बार हम एयरपोर्ट जा रहा था, बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे, कोलकाता सिटी ऑफ रविंद्रनाथ, कोलकाता सिटी ऑफ नेताजी, कोलकाता सिटी ऑफ मदर टेरेसा, कलकत्ता सिटी ऑफ विवेकानंद, कलकत्ता। अरे मैं बोला सब जगह लिखा कलकत्ता सिटी ऑफ ऑल, लेकिन किधर भी प्रभुपाद का नाम नहीं था। तो इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। सिमिलरली हम देखते हैं सब जगह इतने इतने लोगों का पिक्चर्स रहता है कलकत्ता, लेकिन किधर भी प्रभुपाद का पिक्चर नहीं है। लेकिन हालांकि हमने अगर एनालाइज करेंगे प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन और बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन, प्रभुपाद कंट्रीब्यूशन इज अनलिमिटेड। अगर हम देखेंगे विवेकानंद फॉरेन में गए, एक लेक्चर दिया और बहुत फेमस हो गए, और उन्होंने एक माताजी फॉरेन माताजी को लाया। लेकिन प्रभुपाद ने हजारों लेक्चर दिए, हजारों फॉरेन डिवोटीज को लाया, लेकिन कलकत्ता वासी को पता नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है। तो ये हमारा बड़ा सेवा है टू मेक श्रील प्रभुपाद फेमस। अगर श्रील प्रभुपाद फेमस हो जाएंगे तो फिर उनका टीचिंग फेमस हो जाएगा, तो ये जो युग धर्म है और ज़्यादा प्रचारित होगा। तो हम कलकत्ता वासियों का बड़ा भाग्य है कि हमको श्रील प्रभुपाद को फेमस करने का एक अद्भुत मौका है। इसलिए इस जन्माष्टमी के अवसर पे, श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव दिन के अवसर पे हमने ये अभय तीर्थ लॉन्च किया है। कि लोग जाने कौन है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और वो उनका शिक्षा को अपनाए और असली में अभय बन जाए। आहार निद्रा भय मैथुन, ये जगत में ये समस्या हमेशा आहार का समस्या है, लेकिन वो कुछ समय के लिए समस्या होता है। थोड़ा प्रसाद ले लो तो 4-5 घंटा समस्या दूर चला जाता है वो। लेकिन सिमिलरली नींद, आहार, निद्रा कुछ समय के लिए आता है, सोने के बाद चला जाता है। लेकिन जो भय है हमेशा रहता है, 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर, ऑल थ्रू आउट लाइफ। लेकिन अगर कृष्ण का चरण का आश्रय लेंगे तो अभय हो सकते हैं, और वो शिक्षा हमको अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने दिया है, भागवतम के थ्रू और उनके संस्था के थ्रू, उनके शिष्यों के थ्रू। और उन्होंने अभय बनने का एक बहुत ही सरल तरीका दिया है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने ओरिजिनल दिया था। वो है हरे नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we have a great good fortune that in Calcutta we have opportunity to build a great temple in glorification of Srila Prabhupada, and not only temple but a community who live by the teachings of Prabhupada, and in that way actually glorify Srila Prabhupada. तो हमको इधर सिर्फ मंदिर ही नहीं बनाना है, हमको एक भक्तों का समूह संघ बनाना है, जहाँ जो श्रील प्रभुपाद की वाणी के अनुसार, शिक्षा के अनुसार जिए, ताकि लोग आए, वो भी वो शिक्षा से प्रभावित हो और वो भी वो शिक्षा अपने जीवन में अपनाए और असली में कृष्ण भक्ति लेके अभय हो जाए। तो ये कलयुग में यही मार्ग श्री चैतन्य महाप्रभु आए नाम संकीर्तन बांटने के लिए। तो आशा करते हैं धीरे धीरे अभी मायापुर भी डेवलप हो रहा है और कलकत्ता भी डेवलप हो जाए, पूरे विश्व के लोग इधर आके शक्ति प्रदान करके पूरे विश्व में ये द गोल्डन एज इन द एज ऑफ कली, ये जो गोल्डन पीरियड चालू हो गया है। श्रील प्रभुपाद के आने से क्या शुरू हो गया है? गोल्डन एरा। कलयुग तो डार्क एरिया है, लेकिन डार्क एरिया में ये 10,000 साल जो है
एक गोल्डन एरिया। तो हमारा बड़ा भाग्य है, हालांकि हम कलयुग में आए लेकिन कलयुग के गोल्डन एरिया में आ गए, जो कि सतयुग से भी ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि तुरंत यहाँ भगवान का नाम संकीर्तन में भाग लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, we can perfect our lives and we can go back home, back to Godhead. So thank you very much. श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे।